Namaste Gurukulians, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. So, let us continue the discussion of our chapter for class 6, that is key elements of a democratic government. In the previous lecture, this is for class 6th, you can say civics or pol science, whatever. In the last class or in the last lecture, we discussed that how does a democratic government works, what is the role of the people in the working or functioning of a democratic government, or you can say how people are an important part of a democracy. So, while discussing these things, we came to know that in a democratic government which is generally elected for a period of 5 years, in the case of India, we are not discussing about any other country. In India, we have a tenure of 5 years for any government, whether it be state government, whether it be central government, or even the Panchayati Raj system. Okay. So, what we have seen that in these tenure of time, we people exercise the main power. How do we exercise the main power? We people have the power to vote. According to Indian Constitution, the rule says that whosoever is an Indian citizen and have crossed or reached the age of 18 is eligible to vote irrespective of caste, creed, religion, race or sect. So, this is how voting is done in India. We have a voter ID card made by the election commission, right, that is also known as EPIC card, election photo identity card, that is EPIC card, which is also known as voter card. So, from that voter card we get the proof that we are an Indian citizen and we belong to a particular constituency, and we can vote in that particular constituency whosoever the candidate is standing in the election, right. Second thing, we saw that the government which is made by us through voting, if we see that the government is not working properly, if we see that the government is not functioning properly, then it may happen that after a period of 5 years we may change the government, right. Third thing, we saw that there are different ways of participation of people. So, different ways of participation means people, how do people participate in a democracy? Some people participate through voting, some people participate through criticizing the government, some people participate by joining any party, some people participate by doing rallies against the government, some people participate by signature campaign. Suppose if government has brought any law and people are not happy with it, so they may join together and they may start a signature campaign, they may start a protest against the government. So, these are the different ways by which people's expression is shown in a democracy. Apart from that, people also come in TV for debates, people also write a column in newspaper, they also write an article in the magazine expressing their views either in the favor of the government or against the government. So, these are the different ways by which people express their views and make the government understand that whether the functioning of the government is with the people, means people are satisfied with the functioning, or if they are dissatisfied they express their views through these formats. Now, what happens sometimes? As we know, in a democracy people have all the rights to express their views. We have many fundamental rights given by the Indian Constitution. So, we can exercise these fundamental rights whenever required in the country. Now, what happens sometimes? Suppose if a people is protesting, if a people is doing rally, then there sometimes it may happen and lead to tension, lead to war, lead to some destruction. As in the case of India, if we see, in India we have many diverse groups, right. In India we have many divisions, subdivision of caste, we have division on the basis of languages, even in the society we can say we have the division of rich and poor. So, these differences in the society, division on the basis of caste, division on the basis of language, division on the basis of rich and poor, division on the basis of
state wise you can also say. So sometimes these situation may leads to conflict. Sometimes it also happens that poor people, if they are not happy with the working of the government, or if any government scheme is there, they are not happy, they express their disconcern about the government by doing rallies, by destroying some public properties. So these things sometimes may lead to tension, this sometimes may lead to destruction, right. So in that case conflict occurs. So how to resolve the conflict, या why do we need to resolve the conflict? Conflict means झगड़ा, क्यों हमें झगड़ा निपटाने की ज़रूरत होती है, तो व्हाट इज़ द रीज़न, कन्फ्लिक्ट होते क्यों हैं, निपटाना क्यों है, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाई डज कन्फ्लिक्ट अकर, झगड़ा होता क्यों है। मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर सभी बच्चे आपको चिढ़ाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आप सपोज कीजिए गरीब हैं, हो सकता है आपके मन में एक बात आएगी, यार मैं गरीब हूँ, वो अमीर है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है, मेरे पास वो नहीं है। तो ये एक भावना है, ये एक फीलिंग है जो हमारे अंदर आ जाती है, ये भी कभी कभी कन्फ्लिक्ट का कारण हो सकती है। या मान लीजिए सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं और हम जानते हैं कि हमारा सोसाइटी जो है वो कास्ट पे डिवाइडेड है, रेस में डिवाइडेड है, तो कभी कभी वो लोग जिन्हें हम बैकवर्ड पीपल कहते हैं, जो SC ST कैटेगरी से आते हैं, जो कि इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी है, कभी कभी उनके खिलाफ उनको लगता है कि हमारे बातों को सुना नहीं गया या सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, कभी रैली कर लेते हैं, कभी प्रोटेस्ट कर लेते हैं। अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जो कि एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, उनकी बात को दबाई जा रही है, या उन्हें डिस्क्रिमिनेशन ऐसा फील होता है, उन्हें लगता है कि बाकी लोगों से हमारा ट्रीटमेंट अलग किया जा रहा है। जैसे पुराने ज़माने में होता था कि जो राजा लोग होते थे वो महलों में रहते थे, और जो छोटे मोटे लोग होते थे जैसे कुम्हार हो गया, किसान हो गया, या फिर जो गंदगी साफ़ करने वाले हो गए, उन्हें शहर से बाहर रखा जाता था, बहुत दूर रखा जाता था। तो ये एक तरह का क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था, जिससे पता लगता था कि सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू वर्नास और सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास। तो आज भी हमारे यहाँ ये कहीं ना कहीं घूम फिर कर चल ही रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। आपने पढ़ा होगा माया के स्टोरी में कि कैसे कन्फ्लिक्ट जो है वायलेंस में बदल गया। हेक्टर जो था, हेक्टर कैसे प्रोटेस्ट कर रहा था अपने साथियों के साथ, और वो बोला कि नहीं, हम लोग अफ्रीकन लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, हम लोगों को जुलू लैंग्वेज ही सीखना है। पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, गोलियां चलाई, जिसमें हेक्टर को गोलियां लग गई। तो मान लो हेक्टर के साथ और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, उन्हें तो ये अब समझ में आ गया होगा ना कि मतलब लोग, ये जो पुलिस है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो उनके बात को सुनना नहीं चाह रही है। और इससे क्या हुआ, हो सकता है कि ये लोग भी अटैक कर लें, जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन थे वो लोग भी अटैक के मोड में आ जाए। तो ये जब अटैक करेंगे एक दूसरे पर तो क्या होगा, इससे युद्ध ही होगा, वॉर ही होगा, राइट। सो conflicts occur when people of different cultures, when people of different religion or economic background do not get along with each other, see, or when they feel discriminated, right. People may use violent means to settle their differences. कभी कभी लोग जो होते हैं वायलेंट मीन्स, खतरनाक तरीके का इस्तेमाल कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ मार पिटाई कर लिया, हथियारों का इस्तेमाल कर लिया। तो ये सब जो मीन्स हैं वो गलत है, इन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर्स लिविंग इन एन एरिया। इससे क्या होगा, लोगों के अंदर एक डर होगा, लोगों के अंदर एक ये भावना जाएगी कि भैया ऐसा करने से एक दूसरे के साथ लड़ाई हो सकती है। सो गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई टेंशन या ऐसा कोई चीज़ स्प्रेड होता है, तो गवर्नमेंट इज होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट। सरकार का यहाँ पर काम है कि कैसे कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। एक स्टोरी या एक सिचुएशन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं जो कि सबको फॉलो करने पड़ते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी कंट्री जो डेमोक्रेसी है, दैट इज़ नॉट गवर्नड बाय एनी सिटीजन और एनी, इट इज़ गवर्नड बाय सेट ऑफ रूल्स। एक कानून के तहत जो है हर एक सिचुएशन चलता है देश के अंदर, राइट। So Indian Constitution lays down some basic rules or laws that have to be followed by everyone. These laws are for both the government and for the people. So अगर ये सरकार को भी मानना होगा या आम जनता को भी मानना होगा, और इसी गवर्नमेंट में, इसी रूल बुक में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो कैसे हम उस कन्फ्लिक्ट को निपटा सकते हैं, राइट। So let us read about some of the conflicts in our society.
एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग देम। हमारे सोसाइटी में कुछ कन्फ्लिक्ट्स और सरकार का उसमें रोल क्या होता है और कैसे उसे ठीक करते हैं। मान लीजिए कहीं पर रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशन कैन सम टाइम लीड टू कन्फ्लिक्ट। जैसे मान लीजिए हिंदू की कोई मूर्ति जा रही हो, मुस्लिम का भी उधर से कुछ तजिया वगैरह निकल कर आ रहा हो, कभी कभी इस बात पे भी लड़ाई हो जाती है कि पहले कौन निकलेगा, पहले कौन निकलेगा। तो ऐसे केस में सरकार को क्या करना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, पुलिस को अलर्ट रखना चाहिए, ताकि इस तरह का अगर कोई सिचुएशन पैदा होता है तो वो उसे निपट सके। Religious processions and celebrations can sometimes lead to conflicts. For example, the route a procession may lead to a conflict. The government, particularly the police, play an important role in getting representative of the concerned communities to meet and try and arrive at a solution. So यहाँ मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल किसका है, the local police. लोकल पुलिस क्या है, एक गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज की हुई बॉडी है। अगर कोई ऐसा सिचुएशन होता है, कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई टेंशन होता है, तो लोकल पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग दिस कन्फ्लिक्ट। कभी कभी नदियाँ भी जो हैं वो टेंशन का कारण बन सकती हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नदियों का कारण बन सकता है। रिवर्स कैन टू बिकम अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट्स। अ रिवर मे बिगिन इन वन स्टेट, फ्लो थ्रू अनदर एंड एंड इन थर्ड। हो सकता है एक नदी किसी एक स्टेट से निकली, दूसरे स्टेट में चली और तीसरे स्टेट में जाके ख़त्म हो गई। तो वाटर के शेयरिंग को लेकर भी कन्फ्लिक्ट कभी कभी बन सकता है, कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट आपस में इसके लिए भी कन्फ्लिक्ट करती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागर डैम इन द कर्नाटका इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु। The water stored in Mettur Dam in Tamil Nadu is used for crops grown in the delta region of that state. अब कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ? कन्फ्लिक्ट हुआ बिकॉज बोथ द डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। एक रिवर है, उसके एक तरफ कर्नाटका का डैम है, दूसरी तरफ तमिलनाडु का डैम है। द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड इफ द वाटर इज रिलीज फ्रॉम द अप स्ट्रीम लोकेटेड इन द कर्नाटका। कर्नाटका ऊपर है, अब तमिलनाडु वाला डैम तभी भरेगा जब कर्नाटका का जो ऊपर का जो डैम है वो पानी छोड़ेगा, राइट। अब ये पानी नहीं छोड़ेगा तो नीचे पानी जाएगा नहीं, तो तमिलनाडु वाले को प्रॉब्लम होगी। ये भी कभी कभी लड़ाई का कारण बन सकता है। तो ऐसे केसेस में जब कन्फ्लिक्ट होता है, जब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच कन्फ्लिक्ट होता है, तो हमारे पास एक दूसरा जरिया है जिससे हम इस कन्फ्लिक्ट को सुधारते हैं, वो है कोर्ट्स, जिसे हम जुडिशियरी भी कहते हैं। सो अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो हमारे देश में हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं जो ऐसे मैटर्स को सॉल्व करते हैं। पहले तो गवर्नमेंट आपस में बातचीत से सॉल्व करना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो वी हैव कोर्ट्स विच विल सॉल्व दिस मैटर, राइट। सो फ्रॉम these things we get a very clear cut idea that the concept of democracy is based on equality and justice। जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है वो इक्वालिटी और जस्टिस पे बेस्ड है। मतलब हम डेमोक्रेसी में किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देते और हम किसी को नकारते भी नहीं हैं, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर सभी लोगों की बराबरी की हिस्सेदारी है। वेल, इक्वालिटी एंड जस्टिस, लेट अस सी, as I have told you that equality and justice is one of the key feature of a democratic government and its commitment to equality and justice। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज़ इक्वालिटी एंड जस्टिस। मतलब सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी और कानून की नज़र में सभी कोई बराबर होंगे। आपने सुना होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमारे पास बिल्कुल हम अंग्रेज़ों के गुलाम से निकले थे, अंग्रेज़ों के समय से ही हमारे देश में जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ थी वो चली आ रही थी, इवन आज भी चल रही है, लेकिन हम लोग जैसे जैसे पढ़ लिख रहे हैं और लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है, ये सभी चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो सरकार ने जब बहुत लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने देश का बैठे तो उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया। छुआछूत है जिसे हम लोअर कास्ट पीपल करके अपने पास नहीं बिठाते हैं, उनको घरों में नहीं आने देते हैं, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। कानून में अब एक प्रोविज़न है, आप किसी को अनटचेबल नहीं बोल सकते हैं। अगर अनटचेबल बोलकर आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो बाय लॉ यू कैन बी पनिश्ड और एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू, राइट। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को, जिन्होंने दलित्स के लिए फ़ाइट किया और दलित्स को उसके राइट को दिलाया।
आप देखिए कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हैं जो दलित्स के लिए रिजर्व्ड हैं और वहाँ पे सिर्फ दलित्स खड़ा हो सकता है। ये ऐसा किया गया है ताकि उनको भी कॉमन पीपल या फिर जो हायर क्लास ऑफ पीपल जो सोसाइटी में रहते हैं उनके बराबर लाया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे रूल्स भी बनाए जो गरीब लोगों के लिए होते हैं, जो स्पेशली बैकवर्ड क्लास पीपल होते हैं, चाहे वो पैसे से गरीब हों, चाहे वो कास्ट के मामले में गरीब हों, जैसे SB, BC ये सभी ग्रुप्स होते हैं जिनके सरकार ने अलग अलग रूल्स बनाए हुए हैं कि भैया तुम्हें कम नंबर भी हो तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ताकि उनका भी जो सोशल स्टेटस है वो अपलिफ्ट हो सके और वो भी समाज में इज्जत भरी ज़िंदगी जीने के हकदार हों। इसके अलावा पहले देखिए गर्ल्स को बाहर पढ़ने नहीं जाने दिया जाता था, बहुत सारी बंदिशें थी, लेकिन सोसाइटी रिकॉग्नाइजेज बॉय एंड गर्ल नॉट एज अ सेपरेट जेंडर बट बोथ आर ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, जेंडर वाइज वो अलग हो सकते हैं लेकिन समाज में उनका जो दायरा है, उनका जो कद है वो बराबर है। अगर एक लड़के को पढ़ने का हक है तो लड़की को भी पढ़ने का हक है, अगर एक लड़के को नौकरी करने का हक है तो लड़की को भी नौकरी करने का हक है। तो इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि कैसे गवर्नमेंट ने डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत बहुत सारे चेंजेस किए हैं और हमारा जो फेथ है वो डेमोक्रेसी में धीरे धीरे रिस्टोर हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इक्वालिटी एंड जस्टिस। I hope the chapter is understood by you. So the PDF of the chapter will be given very soon. Till then, stay tuned. Thank you and have a nice day.